ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾದುದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಯುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಥಾ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇವರನ್ನು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಪದ ಹಾಗೂ ಗೋಪ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए. ನಾನು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಾದ ನಾನು ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣದ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರೆಂದು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಅಜ್ಜನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವಾದಂಥ ಅಥವಾ ನನ್ನ ತಿಳಿಯ ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಯುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯಬಹುದಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಥಾ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಂಗಾಧರ ಅಜ್ಜರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. सारी औपचारिकता पूरी करते हुए डी.के. शिव कुमार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभालते हुए पार्टी के संकट मोचक इन्हें कहा जाता है. ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ये देखिए सभी के चेहरे सूरजमुखी की तरह खिले हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं. तो सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की और अब डी.के. शिव कुमार ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है. तमाम दिग्गज के रहते हुए जो तमाम दिग्गज इस वक्त मंच पर बैठे हुए हैं. और अब एक एक करके वो 8 विधायक पहुंचेंगे मंच पर मंत्री पद की शपथ लेने के लिए. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾದದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಯುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಥಾ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ शपथ ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं. आप देख सकते हैं आप कई बार विधायक ही रह चुके हैं. पीएचडी की पढ़ाई इन्होंने की हुई है और एक अच्छा खासा
अनुभव इनका रहा है। 6 बार विधायक रह चुके हैं, पूर्व डिप्टी सीएम का पद भी संभाल चुके हैं और मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण इन्होंने किया। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जी परमेश्वर एक सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, दलित नेता माने जाते हैं और राज्य में उनका दबदबा माना जाता है दलित वोटरों में। और अगर बात करें 2013 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, 122 सीट जीत के कांग्रेस आई थी जिस वक्त में, जिसमें सिद्धारमैया पहली बार सीएम बने थे, उस वक्त जी परमेश्वर प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे। जो कमान आज डीके शिव कुमार के पास है वही कमान उनके पास था। उसके बाद हालांकि वो चुनाव हार गए थे पिछला, लेकिन बावजूद इसके उनको एमएलसी बनाकर सरकार में लाया गया। सरकार में वो मंत्री बने, होम मिनिस्टर तक रहे। उसके बाद 2018 में जब सरकार बनती है जेडीएस के साथ समर्थन के साथ, तब जी परमेश्वर को डिप्टी सीएम बनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी अपने कोटे से उनको, दलित कोटे से खासतौर पर उनको बनाती है। तो इस तरह से देखें तो आप अभी तक जो शपथ ग्रहण हुआ है जिसमें सिद्धारमैया को ने सब शपथ लिया, तो आपने देखा कि किस तरह से क्राउड ने उनको ताली बजाकर उनका स्वागत किया। तो मान के चलिए कि जिस तरह से सिद्धारमैया का क्रेज है, हमने देखा है, हम भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी हम कर्नाटक में घूमे, अभी चुनाव में भी हमने पूरा देखा। और सिद्धारमैया को लेकर जो गरीब लोगों में क्रेज है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, उनके भाषण को लेकर, उनके काबिलियत को लेकर और कनेक्शन को लेकर, तो सिद्धारमैया के क्रेज का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला है। जब मुख्यमंत्री उन्होंने शपथ लिया है, उसके बाद डीके शिव कुमार जो कमाल के मैनेजर माने जाते हैं, वहाँ कहा जाता है कि वो छोटे अमित शाह हैं कर्नाटक के लिए, हर तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं। और मैनेजर के तौर पर उन्होंने चुनाव में इस तरह 135 सीटें अगर आई है तो इसमें डीके शिव कुमार का भी बड़ा योगदान रहा है। डीके शिव कुमार ने जिस तरह से कहीं ना कहीं चुनाव में काम किया है, एक ऑर्गेनाइजर के तौर पे, एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे बेहतरीन काम किया है। और यही वजह है कि 3 डिप्टी सीएम जो बनाने की बात थी, उन्हें बनाकर सिर्फ 1 डिप्टी सीएम बनाया गया है। वो प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहेंगे और साथ ही साथ 2024 की कमान उनको दी गई है। देखिए तो एक अब KH मुनियप्पा जो है ये भी आपको दलित नेता माने जाते हैं। तो दलित नेता जो हैं, जितने दलित लीडर्स हैं, दलित मैंने कहा ना कि कर्नाटक में चूँकि 20% दलित हैं और कर्नाटक में कहा जाता है SC राइट SC लेफ्ट, मतलब SC राइट में जो नॉर्मली कांग्रेस का जो वोटर होता था SC राइट का होता था, जिसमें खरगे साहब भी उसी कम्युनिटी से आते हैं। और SC लेफ्ट जो है ना आमतौर पे बीजेपी के साथ जाता है या किसी और पार्टी को वोट देता है। लेकिन इस बार कर्नाटक में SC राइट और SC लेफ्ट दोनों का वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिला है। और कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि चाहे तो मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष होने का ये फायदा है, चाहे फिर आप जी परमेश्वर जो वहाँ के दलित नेता है उनका हो, चाहे मुनियप्पा जो बड़े लीडर रहे हैं प्रदेश के, उनकी वजह से। तो कहीं ना कहीं एक लंबी लिस्ट है कर्नाटक में। अगर कांग्रेस पार्टी की देखिए तो तमाम नेताओं की बड़ी लिस्ट है और दलित वोटर पर फोकस करने के लिए ये स्ट्रेटजी बनाई गई है। सबसे बड़ा सवाल तो ये भी उठता है कि पहले ये कहा जा रहा था कि आखिर सरकार कौन बनाएगा। सरकार बनने के बाद माथा पच्ची हुई, लगभग 1 हफ्ते का समय लगा और मुख्यमंत्री चुना गया। और अब नजरें उसी पर है कि कौन सा पोर्टफोलियो किसको मिलेगा, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही थी कि बहुत 6 से अधिक इन्होंने मंत्री पद मांगे हैं डीके शिव कुमार ने, और वो जो पावर है वो खोना नहीं चाहते। तो मुख्यमंत्री भले ही सिद्धारमैया बन रहे हैं, लेकिन पावर होल्डिंग जो है वो कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार के हाथ में है, क्योंकि केपीसीसी के अध्यक्ष भी वो बने ही रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, केपीसीसी के अध्यक्ष भी बने रहेंगे और 2024 के कमान भी साथ साथ है। 2024 में संगठन की कमान भी उनके साथ साथ है। सरकार के साथ साथ संगठन को भी आगे मजबूत रखना है, संगठन में लोगों को एक्टिवेट रखना है, ये काम है। एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताना चाहूँगा, 3 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। 3 बजे सिद्धारमैया कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और इस 3 बजे की कैबिनेट की बैठक में जो पहला प्रॉमिस है, याद कीजिए, जो 5 कमिटमेंट किया गया है जनता से, 5 कमिटमेंट इस सरकार ने किया है, उस 5 कमिटमेंट को पहले कैबिनेट में हरी झंडी देने की बात है। तो आज ही 3 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और 3 बजे की कैबिनेट की बैठक में जो 5 कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी ने जनता से किए हैं, जिसमें 2000 रुपये हर घर की जो सबसे सीनियर महिला सदस्य होगी उनके अकाउंट में जाने की बात है। उसी तरह जो नौजवान जो बेरोजगार हैं, जो ग्रेजुएट हैं, चाहे जिन्होंने डिप्लोमा किया, जो ग्रेजुएट है उसके अकाउंट में 3000, जो डिप्लोमा किए उसके अकाउंट में 1500 रुपया, और साथ ही साथ 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त की बात है। इसके अलावा बस में महिलाओं की यात्रा मुफ्त होगी। ये तमाम सारे जो वायदे, 4 से 5 वायदे जो कांग्रेस पार्टी ने किए हैं इस चुनाव के दौरान, इस सारे वायदे, और राहुल गांधी ने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में पहला दिन। और रवि देखिए, अब जो अगले विधायक आ रहे हैं मंत्री पद की शपथ लेने के लिए,
और देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, 3 बजे बताया जा रहा है कैबिनेट की बैठक होगी और ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। शपथ ग्रहण के बाद 3 बजे शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की यह बैठक होनी है। लगातार हमारे सहयोगी रवि बने हुए हैं हमारे साथ। रवि, देखिए बिना वक्त गवाए अब देखिए बैठकों का दौर भी शुरू हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल, मैंने कहा ना कि राहुल गांधी ने रैली में प्रॉमिस किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, सरकार बनने के पहले दिन यानी शपथ ग्रहण का ये पहला दिन है आज, शपथ ग्रहण के बाद सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होगी 3 बजे। और ये मान के चलिए कि इस कैबिनेट की बैठक में ही जो 5 वायदे, 5 प्रॉमिस, 5 जिसको कमिटमेंट सरकार कहती थी कांग्रेस पार्टी, उस 5 कमिटमेंट को हरी झंडी आज कांग्रेस पार्टी देने वाली है। और मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से नेताओं की लिस्ट बनाई गई है, तमाम नेताओं को जगह दी जा रही है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बेटे हैं प्रियांक खड़गे, वो भी अभी शपथ लेने वाले हैं। बिल्कुल रवि, देखिए प्रियांक खड़गे का एक बहुत बड़ा रोल रहा है कर्नाटक में। हमने देखा चुनाव के दौरान ग्राउंड लेवल पर अगर किसी ने मेहनत की तो प्रियांक खड़गे का नाम सामने आता है। बहुत समय से न सिर्फ डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया, इवन प्रियांक खड़गे भी कहीं न कहीं ग्राउंड पर बहुत ज्यादा काम कर रहे थे। और इस वक्त तस्वीरें आपको दिखाते हैं, केजे जॉर्ज इस वक्त शपथ ले रहे हैं। ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾದುದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು Zee News.